I went into the market, I went to the places where girls, I believe boys can also not go. Like boys can also not go into this market. I went. Functional भी होना चाहिए, अफोर्डेबल भी होना चाहिए, अवेलेबल भी होना चाहिए, और अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, बच्चों के लिए वो मज़े का भी होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कंसिस्टेंसी तभी आती है क्योंकि अगर मुझे 4 दिन पैसे नहीं मिल रहे मैं बर्दाश्त कर लूँगी, 4 महीने नहीं मिल रहे पैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ, बट नॉट मोर देन दैट। लेकिन आपको ये दिमाग बनाना पड़ेगा कि कहीं अगर 4 साल भी पैसे नहीं मिलते तो क्या आप इस चीज़ पे काम करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। है। ये तभी हो सकता है जब मैंने पाकिस्तान में लॉन्च किए हैं फर्स्ट टाइम hypoglycemic sachet, जो people can carry in their pockets. It's just a 5 gram sachet. They can carry it in their pockets, they can carry it with themselves, और वो orange और lemon flavor में। Assalamu alaikum guys, this is Mohammad Tamim and this is Insha Fareed. So welcome back to another episode of Communicable, and today as our guest we are having Ms. Mahanur Rizwan, the founder of Diabeasy, a medical solution for diabetic patients. Before moving forward, just don't forget to like and subscribe our channel. Also do follow our Facebook community group and WhatsApp community, the links are given below. So Mahanur, आप अपने बारे में कुछ बताइए, a brief introduction of yourself. So basically I'm the founder of Diabeasy. Diabeasy is a startup that is focused on the diabetic patients in Pakistan. Specifically, I'm mentioning Pakistan because that is the niche that I'm targeting currently. Not globally, but Pakistan. Because I believe Pakistan में जो diabetic patients हैं, they are comparatively very deprived as compared to the other people. मतलब globally diabetes पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. And it came out of my own personal experience as well, because I was diagnosed with type 1 diabetes at a very young age. I was 9 years old when I was diagnosed with diabetes. And since past 15-16 years, I've struggled a lot with it. And I know the basic struggles that one patient suffers. क्या मिलता है मार्केट में, क्या नहीं मिलता, किस तरीके से बेहतर हो सकती हैं चीज़ें. Plus a lot of my relatives, they live abroad. तो वो मुझे चीज़ें बेचते रहते थे, तो मुझे पता चलता था अच्छा इतनी रिसर्च हो रही है, इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं. आधी से ज़्यादा चीज़ों की अवेयरनेस मुझे भी नहीं थी. ऑल्दो आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, मेरे पास फ़ोन है, मैं डिजिटली भी बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ, बट मुझे भी नहीं पता था. तो दैट मीन्स कोई कुछ बीच में बहुत बड़ा गैप है. तो उस मार्केट गैप को आइडेंटिफाई किया मैंने, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. तो मैंने रिसर्च करना शुरू की, बिकॉज क्योंकि आधी से ज़्यादा तो चीज़ें मुझे खुद भी पता थी कि क्या नहीं मिल रहा और किस चीज़ की ज़रूरत है. तो उस पर मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग. सो डायबीज़ी का इंट्रोडक्शन बेसिकली ये है कि वी आर वर्किंग इन 3 वर्टिकल्स. Number 1 is that we locally manufacture products that do not exist in Pakistani market. Secondly, we are digitalizing the whole diabetes ecosystem. And thirdly, we are focusing on educating and spreading awareness to the people so that they can manage it on their own. Sahi. So that is Diabeasy. That is what Diabeasy is doing. And as far as my introduction is concerned, so my name is Mahanur Rizwan. Apart from Diabeasy, I did my bachelor's from Bikra University, and in 2023 I graduated, and since then I'm working on this, and I got incubated at National Incubation Center. I got incubated at Accelerate Prosperity as well. So मैं इंडस्ट्री के अंदर कुछ 2 साल से काम कर रही हूँ, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली फ्रॉम द इंक्यूबेशन सेंटर्स. ऑब्वियसली दे मेंटोर यू, वो आपको इंक्यूबेट करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाते हैं, बेसिकली आइडिया से एग्जीक्यूशन तक आपको लेकर जाते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. दैट इज़ द बेनिफिट दैट आई गॉट व्हेन आई गॉट इंक्यूबेटेड एट NIC कराची. Okay, so building a startup, there are many challenges which you have faced, especially when you are the startup is a health focused initiative. तो उसमें अब काफ़ी challenges आते हैं, काफ़ी चीज़ें भी लोग criticize भी करते हैं, पूछते भी हैं कि ये सही है कि नहीं है, कहाँ से. तो what are the challenges you have faced till yet? And पाकिस्तान में obviously awareness फैलाना ही मुश्किल है. यहाँ लोग डरते भी हैं क्योंकि एक कोई टिपिकल माइंडसेट के लोग ज़्यादातर है ना कि पैराडोल खा रहे हैं तो बस पैराडोल ही खाएंगे. अगर डिस्प्रिन भी आई थी जब नहीं, तो मुझे याद है कि डिस्प्रिन से लोग जो ना इसका ये नुकसान है, इसका नुकसान है. एक चीज़ दूसरे को समझाना बहुत मुश्किल है, मोस्टली मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में लोग समझने की नई तरफ जाते, कहते हैं कि नहीं जो हम कर रहे हैं बस वही ठीक है. सो व्हाट वर द चैलेंजेस यू हैव फेस्ड? सो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्हेन यू टारगेटिंग पाकिस्तानी मार्केट, तो उसके अंदर बिल्कुल सही कहा, अडेप्टेबिलिटी बहुत मुश्किल है, हैबिट बिल्डिंग बहुत मुश्किल है, और डिजिटलाइज करना किसी चीज़ को जो ट्रेडिशनली कर से चली आ रही है, दैट इज़ वेरी हार्ड. बट
अब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं जिस एज से आई थी, मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई थी, इट वाज माय लास्ट सेमेस्टर व्हेन आई गॉट इंक्यूबेटेड एट नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर. आई डिड नॉट वर्क एनीवेयर. You should work. This is a message that I'm giving to other people that you should work, get experience, work. मतलब एज अ स्पाई चले जाओ जिस चीज़ में आपको स्टार्टअप में बिल्ड करना है. इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर स्टार्टअप इन फाइनेंस, आप कई बैंक्स में मतलब इस तरह की कंपनीज में, अकाउंटेंसी फर्म्स के अंदर आप जॉब करें, इंटर्नशिप करें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें कि हाउ थिंग्स वर्क. मैं आई वाज वेरी नाइव. मैं ग्रेजुएट होते के साथ ही स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर आई लैंडेड. सो इट वाज अ बिट हार्डर फॉर मी, आई बिलीव. बट मैंने अपने लिए रास्ते खुद निकाले, क्योंकि एक समझ लो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, वो कोई वो हेल्थ टेक प्लस हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए अगर आप जा रहे हैं मार्केट के अंदर विद नो प्रीरेक्विजिट नॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, क्योंकि मैंने बीबीए किया. बिल्कुल. सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट स्टेप एंड अ बिग रिस्क दैट आई वाज टेकिंग. देयर वर 2 रिस्क एसोसिएटेड. नंबर 1 वाज कि लोगों मतलब एक मुझे चीज़ें नहीं पता थी, तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक माउंटेन था जिसको मुझे क्लाइंब करना था. द सेकंड थिंग वाज कि मेरे पास जो है वो जितनी भी नॉलेज थी दैट वाज बिजनेस रिलेटेड. वो तो मेरा नॉट फ्रॉम द मेडिकल फील्ड. एग्जैक्टली, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था. मुझे पता थी चीज़ें, बट मुझे उस लेवल की चीज़ें, टेक्निकलिटीज नहीं पता थी, तो उसके लिए भी मुझे कुछ लर्निंग करनी थी. बिल्कुल. सो और मेरा आइडिया था दैट कि मतलब मैं किसी प्रोडक्ट के साथ NIC नहीं गई थी, या मैं किसी प्रोडक्ट के साथ नहीं आई थी मार्केट के अंदर. व्हाट द अदर पीपल डू इज दे मेक अ प्रोडक्ट, प्रोटोटाइप बनाते हैं, काफी टाइम उसकी रिसर्च करते हैं, देन दे गो टू टेस्ट वगैरह कुछ होता है, उसके बाद टू द मार्केट. आप आइडिया लेके गए? मैं आइडिया लेके ही मार्केट के अंदर थी, और आई वाज नॉट वर्किंग एनीवेयर. ओके. देन आई रियलाइज्ड इसके अंदर एक ये चीज़ भी है, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन दिस, कि जितने भी बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज के मालिक हैं, दे आर नॉट डॉक्टर्स बेसिकली. दे आर नॉट इवन फार्मासिस्ट. दे आर बिजनेसमैन. दैट इज हाउ आई थॉट ऑफ इट. मैंने कहा मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, आई कैन डू इट. सही है. सो हाउ इट स्टार्टेड इज कि मुझे बनाने थे प्रोडक्ट्स. अब मैंने जैसे मेंशन किया दैट आई मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट एक्जिस्ट इन द पाकिस्तानी मार्केट. मुझे पता है, मैंने लिस्ट बना ली थी 60 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की. ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है. ये मेरी assumptions थी, अपनी वर्किंग थी. ये मेरी अपनी assumptions थी कि मुझे नहीं मिला, that means it does not ये नहीं है. बिल्कुल. मैंने 4 महीने सिर्फ मार्केट के चक्कर काटे हैं, सिर्फ मार्केट के चक्कर काटे हैं, डॉक्टर्स के चक्कर काटे हैं, पेशेंट्स से पूछा है, वैलिडेशन लिया है. 4 months ऑफ माई स्टार्टअप जर्नी मैंने कुछ नहीं किया. another 6 months I did not do anything. I wasted like 8-9 months on research. I was in data phase. People used to come and ask me, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, because when you're in the incubation center, you are exposed to the ecosystem. बिल्कुल ऐसा ही है. अब उस ecosystem में कोई बड़ा CEO है. I'm also CEO. I'm not doing anything, but I'm a CEO. I'm a founder. So people who are making like e-vehicles, they are making products, they are ready with everything, and I was a 24-year-old girl who was just doing research. But it did not push me back. मतलब मेरा ये था कि मेरी रेस किसी से है ही नहीं, यहाँ डिमोटिवेट नहीं हुई. मेरी रेस है ही नहीं किसी से यहाँ पे. If he is 40-year-old, अब वो कर रहे हैं तो he has experience, he is worked in the field. I did not. I need to gain the experience. If I'm not getting the experience from another company, I need to get into the market. और असल मैन्युफैक्चरिंग साइड में आप जाते हैं तो आपको मार्केट से जो डेटा मिलता है, that is the main data. कि क्या बिकेगा, क्या नहीं बिकेगा, क्या चलेगा, वही है. और उनको कोई पढ़े लिखे वो BBA की डिग्रियां लेकर नहीं आए हुए. देयर द मार्केट के मतलब जो बंदे हैं, बिल्कुल समझने वाले. एग्जैक्टली. सो दैट इज इट वाज वेरी डिफिकल्ट. बीइंग अ गर्ल, इट वाज लाइक 10 times harder than it is for guys. Like तुम पाकिस्तान में तो स्पेशली it was very hard for me. But I went into the market. I went to the places where girls, I believe boys can also not go. Like boys can also not go into this market. I went there. And I went there. I talked to people. मुझे 4 vendors चाहिए थे. That was the goal. कि एक प्रोडक्ट के एटलीस्ट बैकअप पे 3 वेंडर्स होने चाहिए. If one does not work, मैं rigorously मार्केट के चक्कर काटती रही and I got the vendor that I wanted. So the first product that I landed in the market with is insulin bags. Insulin carrying bag. Insulin bag is basically it's a bag clutch type. उसका इंसुलिन टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट होती है ना, तो उसको कैरी करने के लिए यू नीड टू कीप इट कूल. सो आई वांटेड अ बैग जो कि उसको 12 घंटे तक तो ठंडा रहे. आई हैड अ बैग
जो कि बहुत बहुत ख़राब क्वालिटी का, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का बैग था, और वो 4 घंटे भी नहीं चलाता था। एंड इट बिकॉज इट वॉज जस्ट अ बैग पाउच टाइप, उसके अंदर ही आइस पैक डालो, उसी के अंदर इंसुलिन डालो, तो वो मेरी इंसुलिन के वायल्स, बिकॉज वो कांच की बॉटल होती है, दे ब्रोक इन द बैग। हाँ, वो टेम्परेचर चेंज होता है ना ग्लास का, तो वो ब्रेक हो जाता है। एग्जैक्टली, ग्लास का ब्रेक टेम्परेचर की वजह से द आइस ब्रेक दैट आई यूज्ड टू पुट इन ना, दैट वाज हेवी, वो फ्रोजन थी, वो हेवी थी, उसमें डाली तो वो टूट गया। सो मैं जिस तरीके का चाहती थी, आई यूज्ड टू go to Amazon every day and check the bags. अच्छा ये बाहर तो ये भी बाहर मिल रहे हैं, हाँ, or we can add this feature, we can add that feature. And another thing that I wanted in my bag was कि when you have diabetes since very young, I was 9, तो first few years in my life I did not know what was happening to me, like why my father is injecting me insulin every time. मेरी चीज़ें भी अगली सी हो जाती थी. My mom used to carry everything in you know big bag and all. तो उस चीज़ का ना एक स्कार था मेरे अंदर कि आई यूज्ड टू फील एज अ किड, आई यूज्ड टू फील वेरी डिफरेंट कि आई देयर इज समथिंग रॉन्ग हो जाता है, ऐसा हो जाता है। या सो व्हेन आई वाज मेकिंग दिस बैग, सो आई मेड इट इन 3 कलर्स, pink, blue and black. And the pink one I carry it everywhere. I carry it everywhere with me, and the reason is मुझे उससे कॉस्ट ऊपर पड़ी, बट मैं उसको, इफ़ यू हैव डायबिटीज, योर प्रोडक्ट्स डज नॉट नीड, they don't need to be you know like medical लगे ना, बोरिंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर 10 साल का बच्चा बैग से कोई इंसुलिन बैग निकाले तो अदर पीपल शुड बी, you know, they should like the bag कि यार wow, it's so cool, I also want it. फर्स्ट एड का बॉक्स ना हो, मतलब हाथ में लेके घूम रहा है। It's not like that. So that was the reason behind building this bag, कि functional भी होना चाहिए, अफोर्डेबल भी होना चाहिए, अवेलेबल भी होना चाहिए, और अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, बच्चों के लिए वो मजे का भी होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इंटरेस्टिंग। सही है। तो that was not easy. The challenge was कि मार्केट में, मतलब a young girl who's getting into the market and talking to vendors who have never seen a girl in that market, और फिर उनसे काम करवाना, उनकी लिंगो समझना और उनकी लिंगो को अपना समझना और फिर उसी अल्फाज में बात करना, उनको वो चीज़ एक्सप्लेन करना। मुझे याद है मेरा जब बैग बना था, another 2 months मैं उस बैग से सेटिस्फाइड नहीं थी, तो मैंने कोई 17 टाइम्स उसको चेंजेस करवाए। यस, 17 टाइम्स। आई स्टिल रिमेंबर, आई यूज्ड टू गिव हिम, आई डोंट लाइक दिस, इसको 1 इंच कम करें, 1 इंच ज़्यादा करें, इतनी छोटी सी चीज़। सो दैट स्टार्टअप, इट डजंट हैपन ओवरनाइट। बिल्कुल ऐसा ही है। नेवर। मैं जब आई थी मुझे पता तो था कि इट्स गोना बी वेरी हार्ड, बट क्योंकि एक पैशन एसोसिएटेड था इस चीज़ के साथ, सो फॉर द फर्स्ट फ्यू इयर्स आई डिड नॉट अर्न एनीथिंग। मतलब मैंने प्रोडक्ट ही नहीं है, रिसर्च करी हूँ, who will pay me for that? बिल्कुल। So similarly, another product that I wanted was hypoglycemic sachet. That वो प्रोडक्ट पाकिस्तानी इंसुलिन बैग्स फिर भी मिल जाते थे पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, किसी बड़े फार्मेसी से या अच्छे स्टोर से। The hypoglycemic sachet is not available in the ये है क्या, पहले तो आप ये बताएं। मैं इसका एक्सप्लेन करती हूँ। So type 1 diabetes and there are 3 types of diabetes. Yes. ऐसा भी होता है। Type 1, yes. Type 1, that is diagnosed at a very young age because your pancreas does not work. आपका immune system overactive हो जाता है, that is supposed to work against the bacteria and all, but it attacks your body. So वो आपके pancreas को अटैक करता है, जिसकी वजह से pancreas इंसुलिन बनाना छोड़ देता है। तो जब वो इंसुलिन बनाना छोड़ता है तो your body is not making insulin. इंसुलिन का काम है, whatever we eat, it goes into the body in the form of glucose. ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी में कन्वर्ट करके ब्लड में शामिल करना इंसुलिन का काम है। सो इफ़ योर बॉडी इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन और योर बॉडी इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंट, दोनों तरीक़ों में आपको एक तो इंसुलिन चाहिए, और इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो उसको कम करना है। सो टाइप 1 और टाइप 2 में फ़र्क ये है कि बेसिकली टाइप 1 में तो इंसुलिन नहीं बन रही, तो यू हैव टू टेक इट फ्रॉम एक्सटर्नली, यू हैव टू टेक इट। सो दैट इज़ व्हाट हैपेंड टू मी। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर होता क्या है, या तो पैंक्रियास कम इंसुलिन बना रहा है या इंसुलिन ज़्यादा बन रही है, और बॉडी जो है वो रेजिस्ट कर रही है, सेल्स के ऊपर एक लेयर लग जाती है जिससे वो जो भी इंसुलिन काम करके ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करे वो अंदर नहीं जाता, वो इंसुलिन अंदर नहीं जा पारी सेल्स के। सो दैट इज़ टाइप 2 डायबिटीज़, जिसके लिए दवाई खाते हैं, मेटफॉर्मिन, ग्लूकोफेज या। सो वो उस चीज़ की रेजिस्टेंस को कम करती है। इंसुलिन अगर कम बन रही है तो पैंक्रियास को थोड़ा ज़्यादा करने में हेल्प करती है, या अगर ज़्यादा बन रही है तो उस चीज़ को मैनेज करने में।
these are the two types, and Two the third types. one is gestational diabetes. Gestational diabetes happens in pregnancy because you have another body. तो वो usually क्या होता है कि वो ख़त्म हो जाती है when you deliver the baby. So these are the major types of diabetes. Yeah. So type 1 diabetes और type 2 diabetes के अंदर जब हाई होती है, so basically when your sugar level goes high, so it slowly attacks your body. क्योंकि खून बहुत मीठा है, so it's going everywhere in all your organs. Your kidneys are affected, your eyes are affected, nerves, every organ is affected, but it's a slow process. ऐसा नहीं है कि अभी हाई हुई अभी एकदम नहीं होता. But when your sugar goes down, that is even more dangerous than high. Yes. Foreign effect करता है वो. Yes, because it affects your brain. सबसे पहली चीज़ ये है कि वो आपके दिमाग पे असर करता है. ठीक है, दिमाग की जो वो होती हैं नर्व्स होती हैं, वो डेड होना शुरू हो जाती है. अब बेहोश होते हो या अगर आप कोमा में चले जाते हो तो उसकी रिकवरी का पता नहीं है, वो काफ़ी लंबा वापस. एंड उससे जब आपकी शुगर लेवल डाउन होती है ना, यू नीड समथिंग स्वीट इमीडिएटली. मेरे एक दफ़ा मेरे साथ ये पेपर देते वक्त हुआ, सॉरी टू कट यू. मैं पेपर दे रहा हूँ एग्जाम, उसमें एक बच्चा लड़का, अच्छा खासा लड़का यूनिवर्सिटी का, वो बैठा हुआ है. अचानक से उसने अपनी पॉकेट से लॉलीपॉप निकाला और लॉलीपॉप जो है ना वो लेके घूमना शुरू हो गया. मैं उसको देख रहा हूँ कि ये कर क्या रहा है यहाँ पर. थोड़ी देर उसने मिस को कॉल किया, मिस आई तो मिस ने बोला कि क्या करो, तो बोला मैं शुगर लेवल डाउन हो गई. उस दिन मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि वो अजीब फ्रस्ट्रेटेड सा लग रहा था. उसने एकदम फौरन से निकाला और उसके सिम्टम्स बेसिकली होता है कि जब आपकी शुगर लो हो रही होती है ना, आपको स्वेट आना शुरू हो जाता है, ठंडे हाथ हो जाते हैं, जैसे आप बेहोश हो रहे होते हो. सही. और वो बेहोशी तक का जो प्रोसेस होता है, इट्स वेरी बैड. मतलब आपका वेरी डेंजरस, मतलब समझ नहीं आता. एग्जैक्टली. हाँ, इमोशनली ऑल्सो यू फील डाउन कि मुझे बड़े अजीब से थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं जब मेरी शुगर लो हो रही होती है. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हाइपोग्लाइसेमिक साशेस. अच्छा, अब इफ़ यू आर डायबिटिक, उसमें ये नहीं है कि आप कुछ भी खा लो. What people do is they drink Coke, Pepsi, whatever they get, they just eat it. सही है, उससे आपकी हाई जाएगी, लेकिन आपको एक सर्टेन लेवल तक लाना, उसको मैनेज करना है. तो एक सर्टेन लेवल तक लाना है. द लेवल इज़ 100 from 160 और 180 मैक्स. बट मेरी अगर 60 है तो मुझे सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए उसके लिए टू एलिवेटेड. ठीक है. अब पाकिस्तान में हाइपोग्लाइसीमिया के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है जो इतनी कार्ब्स दे जितनी बनने को ज़रूरत है. द रेंजेस यू नीड ऑलमोस्ट 15 grams of carbohydrate. You can take up to 25 grams depending on your levels, but usually you need 15 grams. तो अब फॉर एग्जाम्पल आई एम सिटिंग हेयर, यहाँ कोई दुकान नहीं है, यू guys might not have a juice or something, and if I don't carry something with me तो और मेरी लो जाती है, तो अगर कोई जाकर लेकर आएगा, देर हो जाएगी, टाइम कंज्यूम इतना हो जाएगा, या कुछ और भी हो सकता है. सो मैंने पाकिस्तान में लॉन्च किए हैं फर्स्ट टाइम hypoglycemic sachet, जो people can carry in their pockets. It's just a 5 gram sachet. They can carry it in their pockets, they can carry it with themselves, और वो orange और lemon flavor में. So you just tear it and have it. उस पर आपको पानी भी पीने की ज़रूरत नहीं है. और उसका फ़ायदा ये है, even if you're at home, you have a lot of other chocolates and everything in your fridge, but you consume this because इसमें लिखा हुआ है that you have 15 grams carbohydrate. तो ये हर की मतलब बेटर है, हर चीज़ ये बेटर है. एक तो ये फौरन काम कर देगा क्योंकि इट्स फास्ट एक्टिंग. ग्लूकोज इज फास्ट एक्टिंग. ग्लूकोज लेवल नीचे हो रहा है, ग्लूकोज खाओगे तो ज़्यादा. अगर किसी और फॉर्म में कुछ खाओगे तो देन व्हाट हैपन इज कि डेयरी मैंने कुछ खाया है तो डेयरी हैज़ लैक्टोज. लैक्टोज को कन्वर्ट करेंगे पहले ग्लूकोज के अंदर बॉडी के और मतलब सेल्स, एंड देन फिर वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में जाएगा. ग्लूकोज डायरेक्टली आप खा रहे हो, दैट इज़ बेटर. So that is what I have launched in the Pakistani market, and these are the two products that I got into the market with. इसके अलावा मतलब like अभी ये 2 प्रोडक्ट्स से मैंने स्टार्ट किया है अपना, एंड इसके अंदर ही मुझे कोई रिसर्च और डेटा सारी चीज़ें करने में बहुत टाइम लगा, बहुत चैलेंजेस आए. It was not easy, even when especially when you are suffering from the same disease. ये आपकी मोटिवेशन भी होगी कि जो मैं जिससे मैं सफ़र कर रही हूँ, कम से कम ये कोई और. इट वाज वेरी हार्ड, एंड मेरी मोटिवेशन यही थी कि मैं दूसरों की हेल्प करूँ. वरना मेरे लिए क्या है, मैं अगर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं एक बैग बनवा लेती, कहीं से मंगवा लेती बाहर से, मेरा काम था. आपका तो चल रहा था लाइक जो मॉनेटरी रीजंस के अलावा भी अगर आपका कोई पैशन एसोसिएटेड होता है किसी स्टार्टअप के साथ, कुछ ना कुछ स्टोरी लिंक चाहिए, तभी आप इतनी मेहनत से और इतनी लगन से कर सकते. परसिस्टेंट आप मतलब
कंसिस्टेंट आप तभी हो सकते हो जब Yeah. आपके अंदर मोटिवेशन भी Exactly. उसी से लिंक्ड होगा. कंसिस्टेंसी तभी आती है क्योंकि अगर मुझे 4 दिन पैसे नहीं मिल रहे मैं बर्दाश्त कर लूँगी, 4 महीने नहीं मिल रहे पैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ, बट नॉट मोर देन दैट. लेकिन आपको ये दिमाग बनाना पड़ेगा कि कहीं अगर 4 साल भी पैसे नहीं मिलते तो क्या आप तो इस चीज़ पे फिर काम हाँ करेंगे? बिल्कुल ऐसा तो ही ये है. तभी हो सकता है जब किसी चीज़ का कोई पैशन एसोसिएटेड होगा आपका इस चीज़ के साथ लिंक। हमारे सीईओ साहब कहाँ हैं हमारे? उनको सुनो उनको भी बता दें. अच्छा, तो खैर आपने बताया कि आपने बीबीए फ्रॉम इक्रा यूनिवर्सिटी Yeah. आपने किया, तो और एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास में ही यू हैव जस्ट गॉट दैट आइडिया. सो हाउ इक्रा यूनिवर्सिटी हेल्प यू, या उसके मेंटोर्स, वहाँ के टीचर्स वगैरह, उनकी क्या हेल्प थी, क्या सपोर्ट थी, और यूनिवर्सिटी का इटसेल्फ क्या इसमें जो ना एक रोल था स्टार्टअप में? और So basically, as we all know, there is this stigma associated with Ikra University here, and मेरे लिए it was bad because I was coming from a Cambridge background. Like okay मेरा O levels किया मैंने, then I did my A levels. I had very good friends group, सारे कोई बाहर चला गया, कोई IBA CBM, nobody came to Ikra. और मेरे लिए बहुत बड़ा शिफ्ट था वो, मेरे कल्चरल शिफ्ट था वो. हाँ, कल्चर में डिफरेंस है बहुत. कि मैं when I मतलब like entered my class the first day, so I was like क्या कहाँ आ गई मैं. not even because of the people sitting over there. I did not get the vibe. And for the first few weeks I did not talk to anyone. I did not. But हर जगह आपको मिल जाते हैं, आपको मिल जाते हैं अपने जैसे. I made a few friends there as well. बट मैंने अपने आप को एक चीज़ ये बोली थी कि मैं पढ़ने जा रही हूँ, आई एम नॉट हियर टू मेक फ्रेंड्स एंड हैव फन. तो मेरा एक गोल था और मुझे डिग्री से कोई कंसर्न नहीं था. मुझे बस आई एम अ वेरी कीन लर्नर ना, तो मुझे था कि यार इन एवरी क्लास I used to sit in the front and I used to make notes and connect with the teachers and talk to them, and I was the favorite nerd child. I was that kid. जिनसे बच्चे चिढ़ते हैं, I was that kid. Okay. So इकरा यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात है, अब जैसे मैंने बोला स्टिग्मा एसोसिएटेड है, लेकिन अगर मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं जाऊँ या तो मैं नहीं करूँ कुछ. हाँ बिल्कुल. या तो मैं इकरा जाऊँ या मैं कुछ नहीं करें. हाँ. सो ऑब्वियसली इकरा बेटर. हाँ. मैं जब गई हूँ, मुझे भले बच्चों ने और माहौल ने और सारी चीज़ों ने, बिकॉज इट्स फॉर मासेस, आई रियलाइज्ड इट कि ये इट्स फॉर मासेस. ये कोई नीश नहीं उठाते, कोई क्रीम नहीं उठाती, सब होंगे. सब होंगे. लेकिन वहाँ की जो फैकल्टी है वो बहुत अच्छी है. इट्स रियली गुड. मतलब मेरा किससे लेना देना था, मुझे टीचर से पढ़ना था, मैंने उनसे ही पढ़ना था बस, और उनकी सब सुननी थी और उन्हीं के साथ काम करना था. एंड मैंने प्राइवेटली किया था. आई डिड माई O levels प्राइवेटली, आई डिड माई A levels प्राइवेटली. व्हाट इकरा डिड फॉर मी इज़ कि मेरा कॉन्फिडेंस किया, बिकॉज अ क्लास फुल ऑफ 60 people एंड आई हैव टू प्रेजेंट इन 48 courses. देयर इज प्रेजेंटेशन. तो एक दिन डरी, दूसरे दिन डरी, फिर आदत हो गई. तो ऑब्वियसली, और मैसेज हैं तो हर तरह के लोग हैं. पीछे बैठ के क्या बातें हो रही हैं वो भी सुनाई दे रहा है, किस तरह के इशारे हो रहे हैं वो भी दिख रहा है. सो ये ट्रेनिंग तो दी मुझे, मेरा कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो गया था उसकी क्लास में. फिर व्हेन इट कम्स टू के मैंने मेरे 3 टीचर्स थे, जिन्होंने 4 एक्चुअली, जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया है, और उन्होंने प्रॉपर मतलब जो गाइड किया. सीखना होना था ना उस क्लास में, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स के टीचर थे मेरे एक शहजाद शमशाद. ही इज़ अ जेम. ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट, ही वाज ब्लंट, ही कैन से एनीथिंग टू योर फेस, एंड वो यूँ फील कर देते थे. उन्होंने जो कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई थी ना, वो अभी तक कहीं ना कहीं है. AI का ज़माना है, वो ईमेल्स लिख, तब AI वाज नॉट देयर, इतना कॉमन नहीं था. तो उस पर सिखा रहे थे चीज़ें लिखना मुझे, कि एक लेटर कैसे करते, बट वो लेटर की हद तक नहीं था. इट वाज लाइक हाउ आई कैन गेट थिंग्स डन फ्रॉम अदर पीपल. मुझे अगर किसी बंदे से काम करवाना वो समझा रहे थे, किसी बंदे से वो स्टोरीज करते थे क्लास के अंदर. किसी बंदे से काम करवाना है तो मुझे किस तरीके से वो जुमला बनाकर बोलना है, एंड कन्विंस करना एक तरह से. आई बिलीव हमारी जनरेशन को कम्युनिकेशन नहीं आती. हमारे से पहले जनरेशन को भी कम्युनिकेशन, divorces 99% of the time they happen because of lack of communication. बिल्कुल ऐसा ही है. कम्युनिकेशन नहीं आती. हम assume करते हैं कि हमने वो बात बोल दी या वो समझ लेगा ये बात. He's not a mind reader. Yes. He's not a mind reader. Exactly. We need to tell him what we want exactly the way it should
that should मतलब happen. हम लोगों का जिस बिल्कुल. तरीके से चाहिए हमें बताना पड़ेगा. और ये relationships, friendships, सब पे अप्लाई होता है. work everywhere. You need to communicate, and that is what he taught me. Then my teacher, Abda Shahin, she was very strict, very strict. But the way वो पहले सेमेस्टर में ऐसी थी, उन्होंने पॉलिश कर दिया था, उनकी स्ट्रिक्टनेस ने पॉलिश कर दिया था. And this sir who came to the podcast, he changed my life. कपिल कुमार. He changed my life. और मेरे human resource के सर. अच्छा. I'm still connected with both of these people. Okay. मेरे सिर्फ सर आते थे ह्यूमन रिसोर्स के और क्लास में सिर्फ बातें करते थे, सिर्फ कहानियाँ, स्टार एम्प्लॉयज़ की कहानी, की एम्प्लॉयज़ की कहानी. आई डिड नॉट स्टडी वन थियोरी इन माई ह्यूमन रिसोर्स क्लास, नॉट इवन वन. आई डोंट रिमेंबर स्टडिंग एनीथिंग. And I remember I scored 98% in that course. And one night before the class, ये स्कीम हमें ये बताया. one night before the class, बस I used to listen to him because he was telling me stories, and it was मतलब the paper that came सब conceptual related to that. Half of the class failed, and one night before the exam, everybody was calling me. क्या करना है. I was like, I don't know what to do. I don't know, even I cannot even tell you what to do because मतलब मुझे ये पता है कि क्या है. मैं सवाल आएगा जवाब दे दूंगी, क्या आएगा क्या नहीं मुझे नहीं पता. क्या पढ़ा थ्योरी, क्योंकि सबको रट्टे की आदत है. That is what's wrong with our educational system. बिल्कुल. Because सबसे बड़ा मसला ही यही है. 4 लाइन का पैराग्राफ नहीं होगा, उसको रट के याद नहीं करेंगे, वो सी 2-4 पॉइंटर्स नहीं लिखेंगे, हमें कुछ नहीं आएगा, लगेगा भी नहीं कि हमने कुछ पढ़ा है. Even in my entrepreneurship class, I came into the class and I recovered from a very bad episode of another disease that is also autoimmune. Okay. It's called Steven Johnson syndrome. इसकी भी awareness नहीं है पाकिस्तान में. Even doctors did not know that is why they misdiagnosed my disease. So Steven Johnson syndrome, because your immune system is active and it attacked previously your pancreas. So किसी दवाई से ना आपको वो ओवर एक्टिव हो जाता है and it starts affecting your body. उस दवाई के अगेंस्ट काम करना शुरू हो जाता. I did not know that I have this problem. So I had some medicine, Disprin. Aspirin does not suit me. So वो मैंने खाई and मुझे बुखार था या कुछ था, तो मेरी पूरी बॉडी में ना रेड दाने होना शुरू हो. एलर्जी. अब आई थॉट इट वाज जस्ट मेरे एलर्जी. तो मेरे मतलब मिड्स खत्म हुए थे, तो मैंने कहा बस मंडे यूनिवर्सिटी जाना है, तो आई जस्ट गो. सो दाने हुए, मैं गई हूँ, मैंने एलर्जी की इंजेक्शन लगवाया और बढ़ गई, फिर इंजेक्शन लग रहा है और बढ़ गई. वन नाइट आई वाज स्लीपिंग, मुझे ऐसा लगा कि मेरा गला चोक हो गया है. आई कैन नॉट ब्रीथ एज वेल. मैंने अपनी अम्मी को उठाया, मैंने कहा टेक मी टू द हॉस्पिटल. She took me to the hospital and we went to Medicare. में उन्होंने मुझे कुछ 6 और इंजेक्शंस लगाए and my mom paid the bill, and then when she came, she उन्होंने कर्टन हटाया. मेरी बॉडी रेड से ब्लैक होना शुरू हो गई थी. और नहीं समझ आ रहा था किसी को, क्योंकि इतना तेज हो रहा था, सारी एक्सट्रीम पे जा रहा था वो बिल्कुल. and my body was burning. I thought I had fever, but it was burning. It was actually burning. Later on, we went to another hospital. I will not name it, but biggest mistake of my life. I should have gone to Aga Khan. I went to another clinic. It's a hospital basically. It's in Gulshan. I went there. They misdiagnosed it as measles. And for the 7 days, it was so painful. Those 7 days were the most painful days. Worst days of my life I've experienced in my life. मतलब they were experimenting on me. एक दिन पहले, before going to Aga Khan, I was puking blood. I was almost dead. And instead of checking up on me कि why am I puking blood, they gave me Gravinate का injection. And then मैं उसके बाद, उस इंजेक्शन के बाद, I don't remember anything, and मेरी फिर बॉडी में ब्लिस्टर्स होना शुरू हो गए. I had this big blisters on my body. And I was burned. I was black. Like बिल्कुल ऐसा था जैसे acid attack के victims होते हैं, just like that. Then I went to Aga Khan, and Aga Khan Hospital, it's not paid promotion. Aga Khan Hospital is so efficient कि उनके जो ब्लड टेस्ट करने वाले आते हैं ना, उन्होंने डायग्नोज कर दिया था आपको तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हुआ है. डॉक्टर्स के वो आए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा आपको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, आपको रखेंगे यहाँ पे.
बट आई सर्वाइव दैट। बहुत कम चांसेस होते हैं, 70% चांसेस होते हैं नहीं वो सर्वाइव करेंगे। ओके ओके। बहुत कम चांसेस थे सर्वाइवल के, बिकॉज वो इस तरह से आगे बढ़ चुका था। बिल्कुल। कोई कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर। माई फ्रेंड्स, क्योंकि आई हैड टू टेक अ गैप, मतलब आई हैड टू टेक अ सेमेस्टर ब्रेक, तो ऑब्वियसली मैं जब गई हूँ तो सारे दोस्त ग्रेजुएट हो चुके थे, सब आखिरी सेमेस्टर चल रहे थे सबके, और मैं गई हूँ और मैं सर की क्लास में बैठी हूँ और मैंने कहा आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू इन माई लाइफ, बिकॉज आई मतलब व्हेन यू एकदम रीस्टार्ट हो गई। व्हेन यू फेस डेथ वेरी क्लोजली, तो आपको ना फिर ज़िंदगी का कुछ मतलब समझ नहीं आता है कि क्या करना है आप ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि अब तो ये है कि व्हेन यू आर डाइंग, तब तो कुछ भी नहीं करा था आपने, तो अब क्या कर लेंगे आप आगे ना, दैट कम्स इनटू योर माइंड। एंड मेरे प्लान्स बहुत ज़्यादा थे कि मैं अब ग्रेजुएट हो जाऊंगी, आई डू 2 months ऑफ इंटर्नशिप, आई अप्लाई टू इस्तांबुल यूनिवर्सिटी एंड देन आई लीव फॉर टर्की। मैंने पूरी सब कर लिया था, बट अल्लाह प्लान्स फॉर यू इज बेटर देन व्हाट आई प्लान। तो मैंने तो सोचा था कि मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करके जाऊंगी एंड आई वर्क ओवर देयर एंड स्टे देयर। पूरा प्लान था, मेरा नहीं था प्लान रुकने का पाकिस्तान में। सही। और मैंने पूरी लिस्ट डाउन भी कर ली थी और मैंने एप्लीकेशंस भेजना भी शुरू कर दी। सो दैट्स हाउ योर लाइफ चेंज्ड। एकदम फ्लिप हो गई लाइफ। और मैं सर की क्लास में जाके बैठी और मैंने बोला अब सर आए, अब सर हैज़ एन ऑरा, ठीक है, सर का एक ऑरा है। मैंने कहा ये पता नहीं, अच्छा मेरे दिमाग में ये भी था कि पता नहीं क्या होगा। मैंने मिक्स्ड रिव्यूज़ सुने थे। उन्होंने ना बड़ा वो किया, काउंसिल किया पहली क्लास के अंदर, नॉट टू मी, टू एवरीवन, सबको बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग सी मोटिवेटिंग बातें की। मैं सर के साथ गई थी सिर्फ एक आइडिया के साथ कि सर मैं ये चाहती हूँ कि ऐसी कोई जगह हो जहाँ मैं जाऊँ, मुझे सारी प्रॉब्लम्स मेरे सॉल्व हो जाए डायबिटीज़ के ना। आई सेड दैट टू हिम। और मुझे आ रहा था कि ये तो रिजेक्ट, क्योंकि उसमें ना आपको कोर्स के अंदर कोई एग्जाम्स नहीं होते, यू हैव टू कम अप विद द प्रॉब्लम एंड अ सॉल्यूशन एंड देन यू प्रेजेंट इट और सॉल्व इट विद अ सॉल्यूशन एक्चुअली। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, ये वो सारी चीज़ें। मैंने फिर मुझे एकदम हिट किया, मैंने कहा मेरी ज़िंदगी सबसे बड़ा प्रॉब्लम डायबिटीज़ है, तो मैं क्यों ना करूँ। तो मैं सर के पास गई, मैंने कहा सर कुछ ऐसा करना है कि जो है वो मैं जाऊँ वहाँ पे तो सब डायबिटीज़ का सब खुद ही हो जाए, तो मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि कर लो। अब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि मैं किसी को इतना वेग आइडिया बोलूँगी और वो जो बोल देंगे कि कर लो। तो मैंने कहा सर कैसे करूँगी, मतलब ये तो बहुत इम्पॉसिबल है। मैंने कहा क्यों इम्पॉसिबल है, रिसर्च करो, जाके गूगल पे जाओ, करो सारी चीज़ें करो, लिस्ट बनाओ। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे ये भी समझ आता है कि जब आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे होते हैं ना लाइफ में, तो यू नीड समवन जो कि आपको अपलिफ्ट के अलावा ना, अगर आपको ये फील करा देना कि यार सब कुछ हो सकता है, तो फिर एक हिम्मत आ जाती है। और उन्होंने यही किया है, अब तक वो यही करते हैं मेरे साथ अभी तक। ही इज़ द पर्सन आई गो टू फॉर एनी प्रॉब्लम दैट आई फेस इन माय लाइफ, ही इज़ दैट पर्सन। नाइस, वेरी नाइस। तो मैंने अब उनको बोला, और पता है एक साइकोलॉजिकल भी फैक्टर होता है। मैं मतलब बहुत नर्डी और इस तरह की पढ़ाई है वो, तो एक कंपटीशन आया, इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन, 100 आइडियाज़ कंपटीशन यहाँ। सो देवर अ लॉट ऑफ पीपल प्रेजेंटिंग देयर FYPs, तो उसमें हम लोगों का भी था। सही। तो जब मैंने वो कंपटीशन एक दफ़ा जीती ना, आई वाज वन ऑफ द टॉप 10 विनर्स उसके अंदर विद द आइडिया। तो मुझे एक ऐसी मोटिवेशन मिली कि अगर मैं इतना लो फील कर रही थी एंड इतना लो कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ तक आ गया, ये कर लिया मैंने, तो फिर although it was not a big deal, now when I look back it was just a competition. But अगर मुझे ये फील हुआ कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मैं फिर बहुत I can achieve more, बिल्कुल। और मैंने छोड़ा नहीं फिर। अगर मैं चाहती तो प्रोजेक्ट खत्म आइडिया। सही बात है। मुझे सर जहाँ बोलते थे ना ये इवेंट हो रहा है यहाँ पहुँच जाओ, 60 बच्चों की क्लास में से अकेली मैं वहाँ पहुँच जाती थी। तो एक इंसिडेंट हुआ, हाइव में एक इवेंट था, हाइव क्लिफ्टन, ओके कोई मीट एंड ग्रीट था उधर, सारे बड़े बड़े CEOs आए हुए थे सारे, और मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट FYP के प्रोजेक्ट के साथ वहाँ पहुँच गई। सही है। और उन्होंने बोला मैं सिर्फ 5 लोगों को बोलूँगा कि दे पिच देयर आइडियाज़। अच्छा, उससे पहले भी ना मुझे पिच नहीं करना आता था और मैं डरती थी। सही। मैं डरती थी, मुझसे नहीं होती थी इतना ज़्यादा किसी बड़े इंसान के सामने। आई कुड नॉट टॉक एंड इट वाज रूम फुल ऑफ इन्वेस्टर्स एंड यू नो CEO, एक्चुअल CEOs। सो आखिरी में उन्होंने कहा आई वांट अ विमेन एंटरप्रेन्योर जो आके जो है वो करेगी। तो मैंने ना ऐसे हाथ रेस किया, स्टिल रिमेंबर। तो उन्होंने बोला
हाँ हाँ श्योर, आप आके करें पिच। और मैंने जो 5 मिनट पिच किया है ना, माई हैंड्स वर शेकिंग एंड ब्लैकआउट, आई डोंट रिमेम्बर इट। और मैं मतलब आई वॉज अबाउट टू फेंट, आई वॉज अबाउट, माई वॉइस वॉज शेकिंग। बट मेरे सर ने मुझे सिखाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे वोंट इवन रिमेम्बर इट। बिल्कुल ऐसी बात है, याद नहीं होगा कुछ, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। उस दिन के बाद वो दैट इंसिडेंट दैट हैपेंड, उसके बाद मेरा डर जो गया है खत्म हो गया बिल्कुल। If you will make me stand in front of 1,000 people now, I won't and I will be speak. scared. I will speak like I'm speaking right now without any fear. डर चला ही गया and that happened because of a teacher, बिल्कुल one ऐसी teacher बात है who changed my life. So that is what he did for me. And then he also said कि भाई अब मेरे लिए वो ये था कि सर जो बोलेंगे ना वो करना है। हाँ गलत सही नहीं देखती थी उसमें मैं कि मेरा फ़ायदा किसी का नुकसान क्या। इफ़ सर इज़ टेलिंग मी टू गो समवेयर, I'll go there. नो मैटर मुझे नहीं समझ आ रही जगह, मुझे नहीं मज़ा आ रहा, कौन होगा कौन नहीं होगा मेरा कंसर्न नहीं है। सर ने बोला जाना है तो जाना है, तो जाना है। दैट इज ये चीज़ होती है क्या, तो जाने का। हाँ वो वही था मेरा, वही है अभी भी वही है। सर बोलते हैं और मैं सर को बोलती हूँ आपको अलाउड नहीं है मुझे डांटना, सब डांट सकते हैं, आपको अलाउड नहीं है मुझे डांटना। सो उन्होंने मुझे बोला नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के एप्लीकेशंस आए हैं। मैंने कहा सर कहाँ होगा नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर, मुझे तो पता भी नहीं था। बिफोर गेटिंग इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप क्लास आई डिड नॉट नो अबाउट इंक्यूबेशन सेंटर्स, मुझे कुछ नहीं पता था अबाउट स्टार्टअप वर्ल्ड, कुछ भी नहीं। तो आई गॉट इनटू द मतलब लाइक उन्होंने बोला नहीं क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट हो जाओगी तो एक एक्सपीरियंस तो गेन हो जाएगा। सो मैं गई नेशनल इंक्यूबेशन 3 days बिफोर। I was working really hard on it, pitch बनाई, ये करा वो करा, तैयारी वैयारी सब। मैं पूरी जितना डरी हुई थी पूरे टाइम पे, the minute I opened the door and I was going into pitch, एक तो मैं वाहिद थी जो पता नहीं, it was a group of 7 guys and 1 girl. मेरा टीम जो थी ना 7 guys and 1 girl only. And I was leading the team and I went in with 4 guys and just 1 little girl. मैंने जब दरवाज़ा खोला मुझे ऐसा लगा मेरा डर पता नहीं कहाँ चला गया। इतना कॉन्फिडेंटली मैंने पिच किया है अपने स्टार्टअप, ऑल्दो इट वाज जस्ट एन FYP, मतलब कोई आइडिया ही था बस, नहीं हम ये भी कर रहे हैं हम वो भी कर रहे हैं एवरीथिंग ये वो एंड आई गॉट इनटू NIC एंड दैट चेंज्ड माय लाइफ। मुझे जो एक्सपोजर मिला, जो चीज़ें सीखी, डांट भी पड़ती है, बड़े आके सीनियर्स डांट भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस एंड आई नीड टू एंजॉय द प्रोसेस, ताकि जब मैं किसी एक अचीवमेंट पे जाती हूँ तो मुझे वो अचीवमेंट इसलिए फील भी होती है। फास्ट मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेशनल अवार्ड दैट आई वॉन्ट। सो बेसिकली जर्नी मेरी इस तरह से हुई कि 2021 में बेसिकली आइडिया जनरेट हुआ, 22 के अंदर जैन में फेब में मैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर पहुंच गई थी। बट ऑब्वियसली एक स्टार्टअप को रन करने के लिए, पुश करने के लिए यू नीड फाइनेंस, कब तक मैं ऐसे वगैरह। सो आई स्टार्टेड विद 10,000 रुपीज़ जो आई वॉन इन द इन द कॉम्पिटिशन। अच्छा ओके, जो इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन हुआ था उसमें 10,000 दैट वाज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एंड आई हैड सम सेविंग्स, कुछ 50,000 से लाख तक, जो कि मैं इसमें लगी हुई थी। बट आई वॉज वेरी वरिड अबाउट द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। पता है कि नहीं उतना मतलब हो जाता है, बट कैसे होगा। सो 2023 के अंदर दिस थिंग केम अप कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल इनोवेशन अवार्ड्स हो रहे हैं, उसकी ग्रांट जो है, अच्छा मैंने ना ग्रांट भी नहीं देखी थी उसकी कितनी, बट एवर कॉम्पिटिशन दैट कम्स आई अप्लाई नो बिकॉज आई एंजॉय द प्रोसेस। मैं उस एंड गोल पे मेरी नज़र नहीं होती, मुझे मज़ा आता है ये करने में कॉम्पिटिशन्स वगैरह। सो अब ये आई तो आई वाज सिटिंग विद माय सर, तो हम लोगों ने डिस्कस किया। मैंने कहा सर तो अब उसका जब मैंने वो एप्लीकेशन फॉर्म देखा ना, इट वाज सो लेंथी। मैंने कहा ये इतना बड़ा क्या है, इतना बड़ा फॉर्म कौन फिल करेगा इसको, बट फिर भी मैंने कहा चलो कर लेते हैं। मेरे दिमाग में था कि नहीं होगा, नहीं आई विल नॉट विन दिस कॉम्पिटिशन। यार पूरे पाकिस्तान से लाखों की तादाद में पीपल वर अप्लाइंग फॉर दैट, उसमें भी 100 सेलेक्ट होंगे जिसमें से टॉप 10। सो इट वाज वेरी ह्यूज थिंग। तो मैंने कहा सही है चलो, खैर फिर वही बात थी, आई अप्लाइड इन इट एंड आई फॉरगॉट अबाउट इट। ओके अब उन्होंने बोला इस्लामाबाद आना पड़ेगा। मैंने कहा कौन जाएगा इस्लामाबाद, खर्च करके छोड़ो। और फिर मैंने ये बोला कि आई कैन नॉट कम,
and I left the group. I left the group. Okay. I did not even wait for their response. Then another person came to मतलब texted me कि हम आपका ऑनलाइन पिच कर देते हैं. मैंने कहा ठीक है ऑनलाइन कर दो. सही है. उसको भी भूल गई मैं. मैं बस नहा के निकली और मैंने एकदम फ़ोन देखा और मैंने कहा ये क्या लिंक आया है. मैंने लिंक को खोल लिया. I was on my phone. I did not even open my laptop because I did not remember that I had to pitch today. कि ये हो रहा था. 23rd of July 2023 I pitched it. और इतना कैंडिड पिच गया है जो था वो निकला because I was not worried about it. I was not fearful. तो मुझे था कि होना ही नहीं है तो क्या होगा. तो चलो पिच करा. I pitched it. 24th of July I received a text, congratulations. मैंने कहा किस चीज़ का congratulations. तो कहने you won. मैंने कहा क्या जीती हूँ मैं. कहने you won the Prime Minister National Innovation Award. मैंने कहा oh. I just said oh. And I did not. वो लोग सोच रहे होंगे बहुत एटीट्यूड है भाई बंदी में. कह रहे मतलब क्या मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था. It happened so fast. मुझे प्रोसेस नहीं करने को. फिर मैं NIC में बैठ के अपना फाइनेंशियल्स वगैरह बना रही हूँ. 8 बज गए. I received a list. And I was in the top 10 winners. Like जो जीते हैं 100 मतलब winners उनको 5 लाख रुपए मिले थे. जो टॉप 10 थे उनको 10 लाख रुपए मिले थे. And they will receive the check from Prime Minister in the Prime Minister house. Yes. And उनके लिए और उसके बाद मतलब it was a 2 million rupees grant. मतलब PKR 2 million की grant थी वो. ठीक है. तो अच्छा अब मुझे ना लग रहा था कि मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है या ये स्कैम तो नहीं हो गया. लग रहा था मुझे कुछ शेडी लग रहा था कि दे आर कॉलिंग अस टू इस्लामाबाद एंड वी हैव टू बी देयर. उनका हमको आना पड़ेगा सामने. 24th of July next day was my birthday. That was the same day. Yes. 2023 was the year of my life. मतलब मुझे अपनी ज़िंदगी का बेस्ट ईयर 2023. सही. मैंने 24 की रात 8 बजे घर आके अम्मी को बोला. मैंने कहा अम्मी मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ेगा. आई थिंक आई वांट समथिंग. कुछ तो मिला. माय मॉम वाज लाइक ओके गो. मतलब क्या व्हाई आर यू आस्किंग जस्ट गो इफ यू वांट टू गो. तो मैंने कहा ठीक है चलो. मैंने उस वक्त तक भी आई वाज वेरी स्केप्टिकल बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टम. मतलब पता है कि कितने स्कैम्स हो जाते हैं. आई एम अ गर्ल उसके साथ 1000 चीज़ें सर. सो मैंने रात 11 बजे टिकट कराई इस्लामाबाद की और वहाँ 10 बजे मुझे होना था एनएस्ट के अंदर. मैंने सुबह 5 बजे की फ़्लाइट कराई. अल्लाह करके आई वेंट टू इस्लामाबाद. मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट से नस्ट पहुँची. पूरा दिन खुआरी के बाद ऑन माई बर्थडे आई रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मिस्टर शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. आई रिसीव्ड द चेक एंड इट वॉज I still cannot accept it. Just a dream like. And that was the money that gave push to diabetes. और फिर वो भी पैसे हैं जो मैंने इन्वेस्ट किए बड़े सेंसिबली. और मैं ये बोलूँगी कि हम बहुत ब्लेम करते हैं लोगों को. गवर्नमेंट पाकिस्तान में वो सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये नहीं है, सब है. ढूंढना हम You have to find out. We are lazy. Yes. We are lazy. We do not want to work hard. We want everything at our home. कोई वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल जाए, कोई ये मिल जाए, कोई वो मिल जाए. No. You have to go out, you have to work hard, you have to work towards the opportunities. They won't give you 100%. Exactly. अगर opportunities आप चाहते हो कि आपके पास आए तो you have to be greedy for it. Yes. सही ऐसा ही बिल्कुल ऐसे ही बात है. वो opportunity if you're not greedy for it you won't पता ही नहीं चलेगा opportunity है क्या है. बिल्कुल हाँ ऐसा ही. हम लोगों को भी अगर हम यूनिवर्सिटी में ना हमारे पास काफ़ी कॉम्पिटिशन्स आते रहते हैं. हाँ. तो ये बात पता नहीं शेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले हमारे पास एक कॉम्पिटिशन आया पाकिस्तान में था. और हमें पता कैसे लग रहा है कि एक बंदा जो हमारे साथ रियाद में आया था एक कंपटीशन में, वो बंदा हमें बता रहा है कि पाकिस्तान में कंपटीशन. तो किसकी गलती है ये? हमारी गलती है. बिल्कुल हमारी. हम लोग वैसे रिसर्च नहीं करते, वैसे काम नहीं करते. लाइक जस्ट सारा ब्लेम उसी पे डाल दिया कि हमारे पास तो कुछ नहीं. यार कोई इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करेगा, फिर पैसे आएंगे, फिर काम होगा. फेक सिनेरियोस में हम लोग रह रहे हैं. पहले का तो काम हमें ही करना है. रिसर्च हमें करनी है, मार्केट में ख्वार वैलिडेशन सारी चीज़ें, प्रोटोटाइपिंग बिल्कुल सब हमें करनी है पहले. अच्छा, ऑन योर वेबसाइट आई जस्ट सॉ के AI बेस्ड डायबिटीज़ मैनेजमेंट पोर्टल, बट मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या है, ये कैसे आगे होगा. सो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं. सो बेसिकली जैसे मैंने बोला हम 3 वर्टिकल्स पे काम करें. मैन्युफैक्चरिंग साइड तो आई क्लियरली एक्सप्लेन्ड व्हाट आई एम डूइंग इन दैट. सेकंड इज आई सेड कि मैं डिजिटलाइज कर रही हूँ डायबिटीज़ के इकोसिस्टम. तो बेसिकली विद डायबिटीज़ मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि डायबिटीज़ इज़ दैट डिजीज़ जिसको बहुत
ज़्यादा फिज़िकल उसकी ज़रूरत नहीं होती। लाइक मैं अगर वीडियो कॉल से डॉक्टर से पूछ लूँगी ना तो मेरी बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। हाँ ओके अब मरहम है, ओला डॉक है, देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, बट वो कोई भी होलिस्टिक नहीं है। हाँ व्हेन यू आर वर्किंग फॉर द मासेस ना, तो आप नीश पे फोकस नहीं कर सकते। बिल्कुल जब ऐसा ही है। दिवागो है, दिवागो पे सारी दवाइयाँ मिलती हैं, और दिवागो पे खाली एक कोई वो नहीं है कि डायबिटीज़ के प्रोडक्ट्स बन के लगे हुए हैं, कैंसर के प्रोडक्ट्स बन के लगे हुए हैं। दे आर द मेडिकल स्पेसिफिक नहीं है कोई एक तो जब आप मास पे काम करते हो तो आप नीश पे काम नहीं कर सकते, फोकस नहीं करते, कितनी नीश पे काम करोगे। बिल्कुल, कैंसर ऐसा है, ही है। डायबिटीज़ है, देन देयर आर मल्टीपल अदर डिजीजेस। तो द रीज़न आई चोज डायबिटीज़ कि ये पूरा डायबिटीज़ सेंट्रिक होगा। अब अगर मैं प्रोडक्ट्स दे रही हूँ बनाकर, तो फिर भी मैनेजमेंट तो नहीं हो रही ना। मैनेजमेंट के लिए क्या करना है? तो डायबिटीज़ मैनेजमेंट पोर्टल हमारा जो है डायबीज़ी का, दैट इज स्टिल इन द R&D फेज, बट आई गिव यू द अ बिट प्रीव्यू ऑफ दैट कि बेसिकली डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ हैंड होल्डिंग, you need doctors, you need dietitians, you need medical coaches। हर स्टेप पे आपको एक अलग डॉक्टर की या अलग मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत है, ठीक है। अब होता क्या है, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरी सिर्फ शुगर थोड़ी मैनेज नहीं हो पा रही, हाई हो रही है या लो हो रही है, तो मुझे 2 घंटे ट्रैवल करके डॉक्टर के पास जाना है, पहले अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, फिर एग्जैक्टली आई हैव टू सिट देयर, वेट फॉर अनदर आवर, बिल्कुल, देन आई हैव टू गेट। अब वो करेंगे क्या कि आप इतने डोज ज़्यादा ले लें, इतने डोज कम ले लें, बाकी सारी चीज़ें, ये दवाई ले लें। मैं किसी को भी वो नहीं कर रही, मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन ये एक प्रोसेस इसी तरह है, ये ट्रेडिशनल तरीका है। बट जब दुनिया इतनी आगे जा रही है तो हम भी आगे जाना चाहिए दुनिया के साथ। बिल्कुल। तो वैसे हम डिप्राइव्ड रह चुके हैं पूरी ज़िंदगी डायबिटीज़ वाले, तो और ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं क्योंकि ना प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर्स भी बहुत लिमिटेड हैं। टाइप 2 के डॉक्टर्स अलग होते हैं, बाय द वे टाइप 1 के डॉक्टर्स अलग होते हैं। इंसुलिन मैनेजमेंट इज नॉट इजी। पीपल who are you know specialized in insulin management, only they can tell you। और उन्हीं से आप कंसल्ट कर सकते हैं। एक्चुअली माय फादर इज आल्सो टाइप 2 डायबिटीज, तो उसके बारे में लाइक हमें बचपन से ही काफ़ी पता है कि हाँ इसमें क्या करना है, शुगर लो हो रही है तो क्या करना है, हाई हो रही है तो सब हम भाग रहे हैं कुछ ना कुछ में। तो अब हमारे मैनेजमेंट पोर्टल के साथ मैं ये चाहती थी कि यार मैं डिजिटलाइज कर दूं पूरा, कि यार लैब्स अब घर आके हो जाते हैं, लैब्स हो जाएंगे। देयर शुड बी अ फार्मेसी दैट इज फोकस्ड ऑन डायबिटीज प्रोडक्ट्स ओनली, और योर ग्रोसरीज, योर प्रोडक्ट्स, वट एवर यू नीड। तो जस्ट लाइक अ पांडा मार्ट क्या है, इकोसिस्टम है रेस्टोरेंट्स का। डायबिटीज मैनेजमेंट पोर्टल ऑफ डायबिटीज शुड बी एन इकोसिस्टम, एन ई डायबिटीज सेंटर फॉर द पेशेंट्स। एक ऐप के अंदर डॉक्टर्स भी मिल सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स भी मिल सकते हैं। तो मैं अच्छा ये सारी चीज़ें मैं वैसे भी मरहम ओला डॉक से कर लूँगी, लेकिन उसमें अभी हायरार्की ऑफ डॉक्टर्स नहीं है। तो हायरार्की ऑफ डॉक्टर्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी है। हाँ बिल्कुल। यू नीड मेंटल हेल्थ काउंसलर्स, जो आपने अपना एक्सपीरियंस बताया अभी, you need mental health counselors, you need dietitian, diet coaches, you need doctors, you need a general practitioner as well। GP भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपको कुछ भी हो रहा हो, गला ख़राब, anything that is wrong with you, you need a GP as well। तो अगर हम हर पेशेंट के साथ एक ग्रुप बना देंगे और क्लस्टर्स के अंदर हम पेशेंट्स को जो है डॉक्टर्स देंगे कि भाई इट्स अ फ्रीमियम एंड प्रीमियम मॉडल। सही, हाँ। अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। अब AI है, AI जो है वो आपकी काफ़ी हद तक चीज़ें बता सकता है कि यार आपको मैं ये खा रही हूँ, तो अब मैं इतना खा रही हूँ, मैं कितने यूनिट इंसुलिन लगाऊँ, या बेसिक जनरल क्वेश्चंस दे कैन आंसर वेरी इजीली। बट उसको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। जितना भी GPT है उसको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। मेरा जो टारगेट ऑडियंस है, उसका जो एज ग्रुप है, उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बीच वाले भी हैं। ओके। तो अब मैं सबसे क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि 90% ऑफ द पीपल दे विल राइट द प्रॉम्प्ट। बिल्कुल। तो उसको ही अगर हम थोड़ा सा पॉलिश करके और बेहतर करके थोड़ा एक उसी के अंदर अपनी एप्लीकेशन के अंदर AI एसोसिएट कर देंगे, तो आई बिलीव AI विदाउट ह्यूमन हेल्प इन मेडिकल एंड हेल्थ केयर इट्स यूजलेस। क्योंकि एक गलत चीज़ गई है, सब खत्म हो जाएगा। मतलब यू डीलिंग विद ह्यूमन लाइफ, और वो वाली जिंदगी है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और काफ़ी सेंसिटिव है। सो जो हमारा AI मॉडल है दैट विल हेल्प द डॉक्टर्स इन मेकिंग अ बेटर डिसीजन मेकिंग। ओके, सही है। क्योंकि सारी चीज़ें अगर वो क्लियरली डिफाइन कर देता है, एज अ पेशेंट हम नहीं बता पाते। बिल्कुल। तो अगर क्लियरली सारी हिस्ट्री आ जाएगी विद
एनालिसिस, तो डॉक्टर्स कैन ऑल्सो मेक अ बेटर decision, और yeah. उनके पास उनके लिए भी आसानी हो जाएगी टू डील Patients विद के द लिए भी आसानी पेशेंट्स, पेशेंट्स के लिए आसानी हो जाएगी, दे हैव समवन विद देम ऑल द टाइम। सही है। अब मैं Yeah, अगर that- मुझे हफ्ते में 2 बार डॉक्टर चाहिए, 1500 कितनी बार दूंगी डॉक्टर को दिखाने के लिए? ऑब्वियसली 2 दफ़ा तो कर देंगे, हाँ। हर वक्त तो नहीं कर सकते ना। सो व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग देम सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, तो आई बिलीव हर बिजनेस मॉडल के अंदर इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद सब्सक्रिप्शन, तो उसकी सब्सक्रिप्शन फीस से ज़्यादा जो आप उसको उसके बदले Deliver कर रहे बेनिफिट हो, दे रहे हैं ना, वो इट शुड अच्छा बी ग्रेटर देन दैट। क्रिएटर बिल्कुल। क्यों? क्योंकि फिर एक साइकी आ जाती है हाँ, आपके, पैसे दिए हाँ। हैं। पैसे दिए पैसे जितने भी दिए। दिए हो तो चाहे। यार भले अब हम जा तो नहीं रहे ना डॉक्टर के हाँ। पास, तो क्या ही जा रहे हैं, क्या? पैसे जा रहे हैं फालतू में हमारे, तो हाँ। जा रहे हैं महीने के पैसे। तो ऑलवेज इफ़ यू आर गिविंग एनी काइंड ऑफ सर्विस, इट शुड बी, आई बिलीव उसका जो बेनिफिट होता है ना, वो तभी जेब से पैसा निकालेंगे अपनी जब वो हाँ। गेन उनको कर रहे ये होंगे। दिखेगा कि हाँ। इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है। कोविड टाइम्स देयर वाज दिस एप्लीकेशन चेग का पता है? चेग बेसिकली उसमें सारे मैथ्स के अच्छा, मैथमेटिक्स के, हाँ मैं सुना स्टैट्स, है। मैथ्स अच्छा। और सारे मोस्टली सवाल जो आते हैं ना आपके हाँ। पेपर्स के अंदर, तो चेक से ही आते हैं और चेक पे उसके आंसर्स होते थे। अच्छा। So it's a paid platform. So it's not a good example, but I'm giving you an example. So when you were मतलब कोविड में ऑनलाइन एग्जाम्स Yeah, होते हाँ। थे और स्टैट्स, अकाउंटिंग, मैथ्स सारे, बल्कि तो अब हम गूगल पे डालते थे, तब चैट जीपीटी इतना इन नहीं था, तो गूगल पे डाल रहे थे और जो है वो आंसर आ रहे थे। चेक कुछ अनपेड देता है, मोस्टली वो पेड होता है। अच्छा सही। सो उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा था। हाँ, बहुत ज़्यादा एग्जाम था। निकालने हैं, अभी तो एक सवाल नहीं बिल्कुल। पता चल रहा था तो 2 आंसर। सो पीपल यूज टू पे फॉर दैट, फॉर जस्ट 1 क्वेश्चन, फॉर 2 Yes. क्वेश्चंस, दे वोंट इवन यूज इट बाद में, पूरा महीना तो नहीं करेंगे। बट द बेनिफिट वाज ग्रेट। In return उन्हें क्या मिल रहा है वो सो अगर आप matter करता है। पाकिस्तान के माइंडसेट के हिसाब से बता रही हूँ कि सब्सक्रिप्शन आप तभी निकलवा सकते हो सामने वाले की जेब से जब उसको फायदा बहुत नजर आ जब रहा हो। फायदा। नेटफ्लिक्स पीपल बाय सबसे बड़ी एग्जांपल। बिकॉज है। उसकी हाँ। एडिक्शन इतनी है और इतना फोमो हो जाता है कि आपने वो शो देखा, वो शो देखा, नहीं देखा यार, नहीं अच्छा तुम देखा। नेटफ्लिक्स नहीं देखते, ये वो, तो वो एक चीज़ उसके साथ है। सो कीपिंग इट कूल के यार अगर जेब से पैसा निकालना है ना पाकिस्तान के अंदर ऐप के लिए, तो कुछ देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा है, अभी भी मैं इसको R&D में ही रखा हुआ है, बिकॉज आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आई डोंट रश इनटू नहीं, थिंग्स, इसमें बहुत I जरूरत don't भी है rush into रिसर्च things. की। तो यही बात है कि व्हेन यू प्रोवाइड अ क्लस्टर ऑफ डॉक्टर्स ना, तो हर तरह का आपकी चीज़ मैनेज हो जाएगी। और थेरेपी, फिजिकल थेरेपी क्या कैसी है, हम एक्सरसाइज में कार्डियो नहीं कर सकती, आई कैन नॉट वॉक, आई कैन नॉट रन अ लॉट, सही। तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये आपका फिजिकल थेरेपिस्ट पे, मेंटल काउंसलर्स बहुत ज़रूरत होती है। जब डायबिटीज़ हो जाती है इंसान को बहुत थॉट्स आते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड योर GPs, योर डाइटिशियंस, दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल इन मेकिंग योर लाइफ बेटर। और काफ़ी जगहों पे ये देखा भी गया है कि इस तरह जो मॉडल, आई एम वर्किंग ऑन द मॉडल, ओके उसकी हेल्प से टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स भी हुई है अच्छा। काफ़ी Okay. केसेस में। इंडिया हैज़ सही, डन दैट, अच्छा, इंडिया हैज़ अच्छा। डन दैट, यस। हमारी सबसे बड़ी जो मार्केट है हाँ। इंडिया, एंड इंडिया इज़ डूइंग दैट। और उसका रिवर्सल रेट इतना हाई है कि वो यूरोप को अब जो है वो Export कोर्सेज कर जो है वो कोर्सेज और इस तरह की जो सर्विसेज हैं दे आर प्रोवाइडिंग ना गवर्नमेंट फंडेड। अच्छा वेरी नाइस। So in Pakistan, we have we are in number 1 in having most diabetic patients as compared to the economy. So we are like 68 million. और meanwhile ये जितने मिनट का भी हमारा पॉडकास्ट हुआ है, इसमें up to like 600 people died globally because of diabetes, because that is the मतलब डायबिटीज़ के साथ डेथ इज़ एसोसिएटेड, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और लाइक पाकिस्तान में 4 लाख बंदा मरता है साल का। ये बहुत बड़ी बीमारी है जिसको हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। हर बंदे को है, हाँ होगी नहीं हो रहा, चेक नहीं कर रहे पूरे दिन, साल महीना नहीं चेक कर रहे। बट साल में पाकिस्तान की ये इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की रिपोर्ट है, आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, तो 400,000 पीपल डाई एवरी ईयर। सो उससे आप हिसाब लगा लो महीने के कितने हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस एंड अनमैनेज्ड डायबिटीज़। सो इफ यू ऐसा ही है। कैन मेक इट ईजियर, जस्ट डाउनलोड द ऐप एंड pay the fees. Even if you're not paying the fees, there is freemium model as well. Just book an appointment, get yourself tested, that's it. That is what you need to do. You don't even have to get up and go somewhere. All right, then we'll see it inshallah in our future. See it very soon inshallah. Sure.
जो काफ़ी हम सीरियस क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आई वाज लाइक हम थोड़ा जंप कर जाते हाँ, हैं। sure. एक जो है ना, मैं आपसे क्विक रैपिड फायर राउंड कर रही हूँ। Sure. I'll ask you a series of questions and you just have to answer the one thing which came in your mind. Okay? So, tea or coffee? Coffee. Instagram or Facebook? Insta. Favorite book or movie? Book is Netflix. Kite Runner. Okay, movie? Very dramatic alone now. I just watch it every time. I don't know why. I Okay. love it. What's one thing you can't live without? My phone. One thing you do to relax after a long day? I watch Friends. Friends? Yeah, I watch Friends. Okay. Favorite Pakistani actor? Actor Fawad Khan. हाँ, या हर लड़की का ये यूनिवर्सल आंसर और है। he's also type 1 diabetic, by the way. अच्छा, Okay. Yeah, he's also type 1 diabetic and he's very vocal about it. Okay. Favorite Pakistani actress? Hania. Hani Amir. Favorite song? Song. Yeah, मेरा कोई favorite song नहीं है. I just listen to anything. Anything? Anything जो mood मेरा जैसा mood हो रहा है. Say it. But I Okay. really like Karan Aujla nowadays. Okay. One word that describes you. I'm passionate and powerful, that I believe. Okay, that's nice. So I guess let's wind up with our signature question. हाँ, बहुत Nani अच्छी Mood. हमारी डिस्कशन हुई हाँ. और काफ़ी दिनों बाद किसी ऐसी पॉडकास्ट में जिसमें मज़ा आया वाकई। मजा आ रहा है। क्योंकि बहुत you so इंटरेक्टिव नहीं लगी, लेकिन ये है कि हाँ, जो चीज़ें सुनी, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी जो स्टोरी है वो बहुत लोगों को मोटिवेट करेगी। तो एक सिग्नेचर क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा मेरा सवाल है, और उसको जितना जल्दी हो सके आप बता दीजिएगा, I'll क्योंकि हमारे try. टाइम कम है, कि आप कुछ ऐसा सजेस्ट करना चाहें उनको जो स्टार्टअप करना चाहते हैं मेडिकल से रिलेटेड, या वैसे ही जो यंग बच्चे हैं Young यूनिवर्सिटीज़ students. के। सो मैं मेडिकल को मतलब इसको मैं और ज़्यादा वो नहीं करूँगी, मैं जनरली रखूँगी इसको कि स्टार्टअप करना जो है वो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत मुश्किल है, बहुत आसान भी नहीं है। इम्पॉसिबल है या बहुत इजी है। मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग, पहली बात तो ये डोंट डू इट फॉर मनी ओनली, बिकॉज मनी हाँ। डज नॉट कम राइट। बिल्कुल। ठीक है। दूसरी चीज़, उस चीज़ के अंदर स्टार्टअप करें जिसमें आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ Interest है। पैशन इन्वॉल्व हो, बिल्कुल। कहीं ना कुछ ऐसी मोटिवेशन इसके हाँ। अंदर ज़रूर होनी चाहिए जो कि आपको पुश करती रहे, वरना यू विल लूज इंटरेस्ट बिल्कुल, हाँ। इन 1 ईयर और इवन इन 6 months। मतलब बिल्कुल, ऐसा ज़रूरी ही है है। कोई पैशन होना कभी कभार आपका इंटरेस्ट या आपका पैशन जो है ना वो आपकी मोटिवेशन बन जाता है, एग्जैक्टली। और वो फ्यूल बन जाता है एक। और दूसरी चीज़, वैलिडेशन लेना बहुत ज़रूरी है। और वैलिडेशन ये नहीं होती कि मैं उठ के आज किसी से भी पूछ लूँ, यार मैं ये कर रही हूँ, चलेगा, या अम्मी से पूछ लूँ या अब्बू हाँ। से। वैलिडेशन उनसे होती है जो आपकी टारगेट Relevant ऑडियंस है। टारगेट। मैंने वैलिडेशन ली, मुझे बहुत बैकलैश मिला था बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर। A lot of people think that I am. I'm not. I really get questions हाँ, on. वाकई हमारी पॉडकास्ट में अगर कोई बीच में से देखेगा तो लगेगा कि डॉक्टर डॉक्टर ही है, लगे yes. इसका। मुझे लोग अपने रोज़ मैसेज करके हमारी ये तबीयत हो रही है, हमें दवाई, मैंने कहा आई कैन नॉट प्रिस्क्राइब यू एनीथिंग, आई एम नॉट अ डॉक्टर। बट मैं ये बोल रही थी, मुझे बैकलैश मिला, बट वैलिडेशन मैंने तब ली जब मैंने डॉक्टर्स के पास जाके, एंड मैं थोड़ा डर रही थी, आई वॉज वेरी नर्वस, बट मैं डॉक्टर्स के पास गई और मैंने डॉक्टर्स को पिच किया और मैंने पेशेंट्स को पिच किया और मैंने कहा यार ये मैं काम कर रही हूँ, क्या फीडबैक है आपका इस चीज़ पे ना। तो डॉक्टर्स से जो मुझे वैलिडेशन मिली है, इट वाज अमेजिंग। हाँ, बिल्कुल। फील्ड दे के वर वो लाइक तो क्या यही तो चाहिए, फील्ड के चैंप्स हैं। यही तो चाहिए, यही तो नहीं है। एंड इट्स गुड। और मैंने बड़े ग्रुप्स ज्वाइन किए थे जहाँ से मैं सिर्फ देखती थी कि किस चीज़ की डिमांड आ रही है। डायबिटीज़ के ग्रुप्स हैं हमारे फेसबुक पे, जो वहाँ से बहुत चीज़ें पता चली कि किस चीज़ की रोज़ आ रहा था कि भाई साशे चाहिए, ग्लूकोज साशे आ गए पाकिस्तान में, लोग बाहर से लेकर आ रहे हैं इतने थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ के बैग्स, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ के। तो मैंने कहा अगर डिमांड, देखो डिमांड तो है, डिमांड तो है। और ये पता मुझे ऐसे ही चला जब मैंने रिसर्च की। रिसर्च किया मैंने इसके ऊपर। तो वैलिडेशन लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप बहुत अच्छी चीज़ भी बना रहे हो ना, बहुत आउट क्लास प्रोडक्ट है आपका, बट द टारगेट ऑडियंस डजंट वांट इट, एक बिकेगा, घर वालों ने ले लिया, दूसरा बिक जाएगा, आपने इस्तेमाल कर लिया, दैट्स इट, दैट्स योर बिजनेस इज डन देयर। मेरे एक सर थे फर्रुख शहजाद, उन्होंने एक स्टार्टअप किया था, उनका इरिगेशन का कुछ सिस्टम था, पता नहीं क्या था, एग्रीटेक का स्टार्टअप। हाँ, एग्रीटेक का स्टार्टअप था। तो उन्होंने एक चीज़ बताई थी अपनी क्लास के अंदर कि जो ना आप अपने ना कॉम्पिटिटर्स से जाके पूछो, जब आप स्टूडेंट होगे ना, तो जो आपका कॉम्पिटिटर इंसान होगा ना, जिसके पास असल दिमाग होगा, वो आपको जो ना गाइड करेगा, वो आपको उस वक्त अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझेगा,
बोलते मैं जब यूनिवर्सिटी में था, मैं अपने मेरे जो कंपेटिटर्स जो चैंप्स बैठे हैं मार्केट में, जायंट्स में, उनसे जाके पूछता था, वो मुझे बताते थे, और आज तक अगर कोई चीज़ उनके पास नहीं हो, मुझसे मंगवा के लेते हैं। ऐसा ही होता है। तो ये चीज़ अक्सर ना, बंदा कोई स्टार्टअप करता है, कुछ करता है, तो वो एक टसल रख लेता है कि जो है ना, ग्रजेस रख लेता है कि ये स्टार्ट मेरा हुआ। अगर आप कंपनी बन के जा रहे हो, टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी कभी जहाँ जाती हूँ ना, मुझे नहीं कंसिडर बहुत एक्सपीरियंस समझते, अब समझते हैं, पहले काफ़ी हद तक नहीं समझते थे, और मैं उस ईगो के साथ जाती भी नहीं थी। सही। मैं जाती थी सीखने के लिए। अगर मैं ईगो रख के जाती तो मुझे कुछ भी ज़रा से ऐसी टेढ़ी बात बोलते, मैं अपनी पर्सनल ऑल्सो अनदर एडवाइस, कीप योर पर्सनल फीलिंग्स aside from your startup. If they're saying anything bad to the startup, they're not targeting you. Yes. They're targeting the startup, and that is, कोई गलती है, कुछ फॉल्ट है, तो वो स्टार्टअप को आप उस वक्त ही सही कर सकते हो, आप एक्सेप्ट कर दो कि हाँ ये सही थी, गलती थी, तो मैं उस पे वर्क करो, बजाय उसके कि अपने ऊपर ले ले। बहुत सुनाई थी एक इंसान ने मुझे, बड़ी सुनने को मिली थी, एंड he was right. He was right, but the way he said things, it was very hurtful. For a minute, ये हमारे साथ भी हुआ है। I was about to give up, but then जब वो कॉल काटने वाले थे, उन्होंने कहा B2B नहीं करो, B2C नहीं करना है आपको, कोई भी डायबिटिक पेशेंट्स ऐसे रैंडमली जाके प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, यू हैव टू गो B2B। और जिस तरीके से उन्होंने बोली थी सारी बातें, तो आपको अपने दिमाग में फ़िल्टर भी लगाना होता है छोटा सा, बिल्कुल, दैट यू नो वो फ़िल्टर आउट कर देता है सारी यूजलेस बातें, और जो यूजफुल बातें हैं ना, वो रखनी ज़रूरी हैं। और अभी भी अगर मुझे कुछ बोलता है कोई कि डायबिटीज़ नहीं हो रहा, डायबिटीज़ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मैं पूछती हूँ क्यों, और आप मुझे बताएं कि कैसे होगा, फिर सही, ये भी सही है, कैसे होगा ना, एग्जैक्टली। मैं नहीं कर पा रही, तो आप बता दो कैसे होगा। तो वो जब बताते तो आई अप्लाई इट, और मैं उनको भी बताती हूँ, आपने बोला था, मैंने किया, तो उनकी भी ईगो थोड़ी सी सेटिस्फाइड। जो बंदा पहले आपको थोड़ी सी अपनी वो दिखा रहा था एफिशिएंसी, वो अब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। दैट शोज कि आई एम इन फॉर अ राइड, मतलब मैं गिव अप नहीं करने वाली। बिल्कुल। तो मुझे कुछ करना है, पिवट करना है उसको। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन, आवर सिग्नेचर क्वेश्चन। हमारा सिग्नेचर क्वेश्चन ये होता है कि आपके मुताबिक अगर कोई भी ऐसी चीज़ आप चेंज करना चाहें पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में, चाहे वो कोई कंसेप्ट हो, चाहे वो कोई तौर तरीका हो, या कोई भी चीज़ हो जो आप चेंज करना चाहती हैं पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में, मैं सब चेंज कर दूंगी, पूरा एजुकेशनल सिस्टम। हमारे पास एक गेस्ट आए थे, उन्होंने ऐसी कोई बात की थी कि सिस्टम ही खत्म कर दूंगा मैं भी सिस्टम खत्म कर दूंगी एजुकेशनल। सी वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स AI and we are very rapidly moving towards it. So हम पाकिस्तान के अंदर मैंने अपना जब A levels किया था ना, तो मैंने बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटिंग और उर्दू आई गेस या इकोनॉमिक, ऐसे कोई सब्जेक्ट लिया था। सो मैंने जो उस बिजनेस स्टडीज़ की बुक में पढ़ा था ना, 1 साल सॉरी, 4 साल मैंने पूरे BBA में उससे कम पढ़ा है, उस एक बुक से कम पढ़ा है मैंने, जो कि A levels इज इक्वल टू इंटर। तो जो मैंने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ लिया था अपनी, तो मैं वो ढूंढ ही रही थी कि मैंने एक चीज़ नहीं सीखी अपने BBA के अंदर, सिवाय इसके कि मुझे उस चीज़ के उस रोज़ जाने की डिग्री मिल गई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो दैट इज़ यूजलेस। अकाउंटिंग मैंने जो चीज़ें सीखी हैं वो मैंने अब तक नहीं पढ़ा बिजनेस, मतलब BBA के अंदर। ये वही मास्टर्स लेवल की A+B का फॉर्मूला हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। एग्जैक्टली। तो अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होती है कि मैंने इतने पैसे दिए, मैंने BBA किया, मैंने 4 साल अपनी ज़िंदगी की, मैं A levels करके ही अगर स्टार्टअप कर लेती तो बहुत अच्छा। लेकिन तब ये था कि डिग्री ज़रूरी है, डिग्री ले ली, लेकिन क्या कुछ ज़्यादा खास कुछ फ़ायदा नहीं होता। अब तो इसमें ये सारी चीज़ें मैं चेंज करूँगी भाई, अगर मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह मिलेगा आपको। पहले 4 साल को 2 साल करूँगी। हाँ ये भी है, इट्स यूजलेस। कुछ 4 साल में बहुत फालतू, जैसे हमारी डिग्री एंटरप्रेन्योरशिप BBA है, BBA बोला नहीं चाहिए, लेकिन ये 2 साल क्या, मैं तो कह रहा हूँ साल में ही पूरी हो जाए। मैं 4 साल नहीं, वाकई 2 साल में, 1 साल में हो जाए। They teach us useless courses, world history, world literature. Why am I studying world history and world literature? Teach me AI, teach me Excel, teach me any other skill that I will use in my life. बिल्कुल। So educational system के अंदर बहुत flaws हैं I believe, लेकिन डिग्री ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। So क्योंकि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, then you figure your life out.
So that's So it. thank you so much, Thank Manur, you so for much. coming. Thank you for inviting me. Thank you so much. नहीं You're इट welcome. वॉज अ प्लेजर टू बी ऑनेस्ट. बहुत अच्छी पॉडकास्ट रही मेरे ख्याल से, और हमने काफ़ी कुछ सीखा. इवन हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा जरूर. फॉर श्योर. सो Thank you थैंक so यू सो much. मच. Thank you मोस्ट so Allah वेलकम. Hafiz.